کبھی تم نے یہ سوچا ہے کہ آخر کیوں اللہ تمہیں اتنی آزمائشوں سے گزار رہا ہے؟ کیوں تمہارے حصے میں وہ درد آتا ہے جو تم کسی کو بتا بھی نہیں سکتے اور سہ بھی نہیں پاتے؟ اگر تم اس وقت یہ سن رہے ہو تو شاید تم اندر سے تھک چکے ہو، شاید تم نے بہت کوشش کی ہوگی اسٹرانگ رہنے کی، مگر اب دل نے آہستہ سے ہار مان لی ہے۔ ایک عجیب سا سوال بار بار دل میں آتا ہوگا، یا اللہ آخر کیوں؟ اور سچ یہ ہے، یہ سوال صرف تم نہیں پوچھ رہے، یہ ہر وہ دل پوچھتا ہے جو خاموشی میں ٹوٹ رہا ہوتا ہے۔ مگر کیا ہو اگر میں تمہیں یہ کہوں کہ تمہاری یہ حالت، تمہارا یہ ٹوٹنا بیکار نہیں جا رہا؟ کیا ہو اگر یہ سب کچھ کسی بڑی تبدیلی کی شروعات ہو؟ تم لوگوں کے درمیان ہوتے ہو، ہنستے ہو، بات کرتے ہو، ایسا لگتا ہے جیسے سب ٹھیک ہے، مگر دل کے اندر ایک شور سا چل رہا ہوتا ہے۔ تم نے سب کو سہارا دیا، سب کے لیے مضبوط بنے رہے، مگر جب بات خود کی آئی تو تم اکیلے رہ گئے۔ تم نے اپنے آنسو چھپانا سیکھ لیا، اتنا کہ کوئی تمہاری آنکھوں میں درد پڑھ نہ سکا۔ مگر رات ہمیشہ سچ سامنے لے آتی ہے۔ جب سب سو جاتے ہیں تو تمہارا دل جاگ جاتا ہے۔ وہی سوال، وہی درد، وہی بے بسی، اور پھر ایک لمحہ آتا ہے جب دل آہستہ سے کہتا ہے بس اب اور نہیں۔ مگر یہی وہ لمحہ ہوتا ہے جہاں سے سب کچھ بدلنا شروع ہوتا ہے۔ ہاں، یہی وہ مقام ہے جہاں انسان کو لگتا ہے کہ وہ ختم ہو گیا، مگر حقیقت میں وہیں سے اس کی نئی شروعات ہوتی ہے۔ کیونکہ جب تمہاری اپنی طاقت ختم ہو جاتی ہے تو اللہ اپنی طاقت شامل کر دیتا ہے، اور وہ طاقت تمہیں بدل دیتی ہے۔ یہ جو تمہارے ساتھ ہو رہا ہے، یہ صرف ایک حادثہ نہیں ہے، یہ ایک ترتیب ہے، ایک پروسیس ہے جو تمہیں وہاں لے جا رہی ہے جہاں شاید تم کبھی خود نہیں پہنچ سکتے تھے۔ کبھی کبھی اللہ انسان کو لوگوں سے دور کر دیتا ہے تاکہ وہ شور سے نکل کر اپنے رب کی آواز سن سکے۔ جب کوئی تمہیں نہ سمجھے تو دل سیکھتا ہے کہ اب بات صرف اللہ سے کرنی ہے، اور جب کوئی ساتھ نہ دے تو انسان کو یہ احساس ہوتا ہے کہ اللہ ہی کافی ہے۔ یہ آزمائش سزا نہیں ہوتی، یہ ایک دعوت ہوتی ہے، اللہ کے قریب آنے کی دعوت۔ قرآن میں اللہ فرماتا ہے کہ ہم ضرور آزمائیں گے، خوف سے، نقصان سے، اور صبر کرنے والوں کو خوشخبری ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر تم روئے ہو، اگر تم اکیلے رہ گئے ہو، اگر تمہارے ساتھ کچھ چھن گیا ہے، تو یہ سب بے معنی نہیں ہے، یہ تمہارے ایمان کا حصہ ہے۔ تم نے دعا کی ہوگی اور جواب فوراً نہیں آیا ہوگا، تم نے رو کر مانگا ہوگا اور ہر طرف خاموشی محسوس ہوئی ہوگی۔ ایسے لمحوں میں ایسا لگتا ہے کہ جیسے اللہ سن ہی نہیں رہا، مگر حقیقت اس کے بالکل برعکس ہے۔ اسی خاموشی میں تمہارے اندر کچھ بدل رہا ہوتا ہے۔ تمہاری سوچ، تمہارا صبر، تمہارا اللہ پر یقین آہستہ آہستہ گہرا ہوتا جا رہا ہوتا ہے، اور پھر ایک دن تم خود کو دیکھتے ہو اور حیران ہوتے ہو کہ تم پہلے جیسے نہیں رہے۔ تم پہلے جلدی ٹوٹ جاتے تھے، اب تم برداشت کر لیتے ہو۔ پہلے تم لوگوں سے امید رکھتے تھے، اب تمہارا دل اللہ سے جڑ چکا ہے۔ تمہارا ایک بھی آنسو ضائع نہیں گیا۔ ہر وہ رات جو تم نے جاگ کر گزاری،
हर वो दुआ जो तुमने दिल से मांगी, सब कुछ अल्लाह के इल्म में महफूज है। और एक दिन ये सब तुम्हारे हक में बदल जाएगा। तुम्हें लगता है तुम अकेले हो, मगर सच ये है, अल्लाह की मदद हमेशा नजर नहीं आती। वो दिलों को संभालता है। उन लम्हों में जहां इंसान बस ये कहता है, या अल्लाह मैं थक गया हूं। और याद रखो, जब तुम अल्लाह को याद करते हो तो अल्लाह तुम्हारा जिक्र फरिश्तों में करता है। सोचो, तुम यहां टूटे बैठे हो और वहां तुम्हारा जिक्र हो रहा है। तुम्हारी ये टूटी हुई हालत अल्लाह को नापसंद नहीं, क्योंकि इस लम्हे तुम सच्चे होते हो। बनावट खत्म हो जाती है और असल दिल सामने आ जाता है। कभी सोचा है, कुछ लोगों की जिंदगी आसान क्यों लगती है और कुछ हर मोड़ पर आजमाए जाते हैं? ये फर्क किस्मत का नहीं होता, ये फर्क मकाम का होता है। कुछ रास्ते लंबे होते हैं, मगर वो इंसान को बहुत मजबूत बना देते हैं। असल सवाल ये नहीं है कि तुम कितनी बार टूटे, असल सवाल ये है कि टूटने के बाद तुम अल्लाह से जुड़े रहे या नहीं। और अगर तुम अब भी ये सोच रहे हो कि आखिर ये सब तुम्हारे साथ ही क्यों हो रहा है, तो जरा एक लम्हा ठहर कर सोचो, क्या वाकई ये सब तुम्हारे खिलाफ हो रहा है या फिर तुम्हारे हक में कुछ ऐसा तैयार हो रहा है जिसे तुम अभी देख नहीं पा रहे? कभी कभी इंसान जिस चीज को नुकसान समझता है वही चीज उसे बचा रही होती है, और जिस चीज के लिए वो रो रहा होता है वही चीज उसके लिए नुकसानदेह होती है। मगर दिल कहां मानता है? दिल तो बस वही चाहता है जो उसे सुकून दे, चाहे वो सुकून वक्ती ही क्यों ना हो। और फिर अल्लाह इंसान को रोक लेता है, कभी किसी रिश्ते के जरिए, कभी किसी नाकामी के जरिए, कभी किसी ऐसे दर्द के जरिए जो उसे अंदर से हिला कर रख देता है, ताकि वो रुक जाए और सोचे कि वो जा कहां रहा था। तुमने कभी गौर किया है, जब तुम्हारी जिंदगी में सब कुछ ठीक चल रहा होता है तो तुम्हारी दुआएं भी मुख्तसर हो जाती हैं। तुम अल्लाह से मांगते जरूर हो, मगर वो तड़प नहीं होती, वो आंसू नहीं होते, वो बेबसी नहीं होती। मगर जब जिंदगी तुम्हें एक ऐसे मोड़ पर ला खड़ा करती है जहां कोई रास्ता नजर नहीं आता, तब तुम्हारी एक एक दुआ दिल के अंदर से निकलती है। तब तुम सजदे में जाकर सिर्फ अल्फाज नहीं, अपना दिल रख देते हो। और यही वो लम्हा होता है जहां बंदा अल्लाह के सबसे करीब होता है, क्योंकि अब वो दिखावा नहीं कर रहा होता, अब वो हकीकत में होता है, टूटा हुआ मगर सच्चा। कभी कभी अल्लाह तुम्हें वो नहीं देता जो तुम चाहते हो, क्योंकि वो तुम्हें वो देना चाहता है जिसकी तुम्हें वाकई जरूरत है। और ये दोनों चीजें हमेशा एक जैसी नहीं होती। तुम किसी चीज के लिए जिद करते हो, रोते हो, मांगते हो, मगर वक्त गुजरता है और वो चीज नहीं मिलती, और तुम सोचते हो अल्लाह मेरी दुआ क्यों नहीं सुन रहा। मगर कुछ वक्त बाद तुम पीछे मुड़कर देखते हो और खुद से कहते हो, अगर वो मिल जाता तो शायद मैं आज यहां ना होता। यही अल्लाह की हिकमत है जो उस वक्त समझ नहीं आती, मगर वक्त के साथ सब कुछ वाज़ेह हो जाता है। तुम्हारी जिंदगी में जो ताखीर हो रही है वो भी एक जवाब है। तुम्हारी दुआओं का फौरन कबूल ना होना ये भी एक जवाब है। और तुम्हारी जिंदगी का रुक जाना ये भी एक इशारा है कि अल्लाह तुम्हें कहीं और ले जाना चाहता है, किसी ऐसे रास्ते पर जहां तुमने कभी सोचा भी नहीं था। और उस रास्ते पर तुम्हें तन्हा चलना पड़ता है, क्योंकि कुछ सफर अकेले ही तय किए जाते हैं कि सब तुम्हें छोड़कर चले गए, मगर हकीकत में
तुम्हें सिर्फ अल्लाह के लिए खाली किया जा रहा होता है, ताकि तुम्हारा दिल किसी और से हटकर सिर्फ एक से जुड़ जाए। और जब ये ताल्लुक बन जाता है ना, तो फिर इंसान के अंदर एक अजीब सी ताकत आ जाती है। वो ही इंसान जो पहले छोटी छोटी बातों पर टूट जाता था, अब बड़े बड़े गम खामोशी से सह जाता है। ये ताकत कहां से आती है? ये ताकत अल्लाह पर यकीन से आती है। जब इंसान ये मान लेता है कि जो हो रहा है वो अल्लाह की मर्जी से हो रहा है और अल्लाह उसके लिए बुरा नहीं चाहता, तो दिल आहिस्ता आहिस्ता मुतमईन होने लगता है और यही इत्मीनान अंदर का सुकून बन जाता है। वो सुकून जो दुनिया की किसी चीज से नहीं मिलता। तुमने शायद महसूस किया हो कि अब तुम पहले जैसे नहीं रहे। तुम पहले हर बात पर परेशान हो जाते थे, अब तुम चुप रहते हो। पहले तुम हर किसी से दिल लगा लेते थे, अब तुम्हारा दिल सिर्फ अल्लाह को ढूंढता है। ये तब्दीली इत्तेफाक नहीं है, ये वो असर है जो आजमाइश इंसान के अंदर छोड़ जाती है। और सबसे खूबसूरत बात क्या है कि जब तुम अल्लाह की तरफ एक कदम बढ़ाते हो, तुम बस एक बार सच्चे दिल से उसे पुकार कर देखो। अपने दिल की वो बात जो तुम किसी को नहीं बता सकते, सिर्फ अल्लाह को बताकर देखो। वो सुन रहा है, हमेशा से सुन रहा है, और वही वक्त चुनता है जब तुम्हें देना तुम्हारे लिए सबसे बेहतर हो। तुम्हारी वो दुआएं जो तुमने रातों में मांगी थीं, वो जाया नहीं हुई। वो बस अपने वक्त का इंतजार कर रही हैं। और एक दिन अचानक तुम्हारी जिंदगी में कुछ ऐसा होगा जो तुमने सोचा भी नहीं होगा, और तुम खामोशी से दिल में कहोगे। और एक दिन अचानक तुम्हारी जिंदगी में कुछ ऐसा होगा जो तुमने सोचा भी नहीं होगा, और तुम खामोशी से दिल में कहोगे, ये कैसे हो गया? वो अल्लाह की वही मदद होगी जो हमेशा खामोशी में आती है। मगर इस सब के दरमियान एक चीज बहुत जरूरी है, तुम्हारा सब्र और तुम्हारा यकीन। क्योंकि बगैर सब्र के इंसान रास्ते में ही थक जाता है, और बगैर यकीन के वो अल्लाह से जुड़ नहीं पाता। इसलिए अगर तुम आज टूटे हुए हो, अगर तुम्हारे पास कोई जवाब नहीं है, अगर तुम्हें समझ नहीं आ रहा कि क्या हो रहा है, तो बस एक काम करो, अपना दिल अल्लाह के सामने रख दो, बगैर किसी शिकायत के, बगैर किसी सवाल के, और आहिस्ता से कहो, या अल्लाह, मैं नहीं जानता ये सब क्यों हो रहा है, मगर मुझे तुझ पर यकीन है। और शायद यही वो लम्हा होगा जहां से तुम्हारी जिंदगी बदलना शुरू हो जाएगी। और शायद यही वो लम्हा होगा जहां से तुम्हारी जिंदगी बदलना शुरू हो जाएगी। क्योंकि जब इंसान वाकई अल्लाह पर यकीन कर लेता है, जब वो अपनी कमजोरियों के साथ भी उसके सामने खड़ा हो जाता है, तो फिर वो कभी अकेला नहीं रहता। अल्लाह से जुड़ जाना सिर्फ अल्फाज का ताल्लुक नहीं होता, ये दिल का फैसला होता है। जब तुम हर चीज से थक जाओ, तो लोगों की तरफ नहीं, अपने रब की तरफ मुड़ जाओ। अपने सजदों को लंबा कर दो, अपनी दुआओं को सच्चा कर दो, और अपने दिल को ये यकीन दे दो कि जो कुछ भी हो रहा है वो तुम्हारे खिलाफ नहीं, बल्कि तुम्हारी तरबियत के लिए है। खुद को मजबूत बनाने का सबसे खूबसूरत तरीका यह है कि तुम अपनी उम्मीद अल्लाह से जोड़ लो। क्योंकि जब उम्मीद इंसानों से टूटती है, तो अल्लाह से जुड़कर दोबारा जिंदा हो जाती है। याद रखो, तुम कमजोर नहीं हो, तुम सिर्फ आजमाए जा रहे हो। और आजमाइश हमेशा कमजोरी नहीं होती, ये तो ताकत बन जाती है अगर तुम सब्र कर लो। और अब दिल से एक छोटी सी दुआ, या अल्लाह, जो दिल इस वक्त टूटे हुए हैं,
ان کو سکون عطا فرما، جو پریشان ہیں ان کی پریشانی دور فرما، جو رو رہے ہیں ان کے آنسو قبول فرما، اور ہمیں ہر حال میں اپنے قریب رکھ، ہمیں مضبوط ایمان عطا فرما، اور ہماری آزمائشوں کو ہمارے لیے آسانی بنا دے۔ آمین۔